हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9, द एस्टेब्लिशमेंट एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चों के इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें गुलाम वंश से लेके जो है अकबर तक की स्टोरी की जानने की हम कोशिश करेंगे। खलजी वंश की स्थापना से लेके जो है सारे जो है उनके चुनौतियों का भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a most important chapter is a discussion here, Maluk's Sultans. There is a Maluk. There is a first word is a Maluk is the most important here. Maluk mean to the here slave. Slave there is the most important here. A slave sultans. With the Qutbuddin Aibak is began to period of the Maluk Sultan or the slave. The century, and the Maluk is the Arabic word mean a overhead. It was used to distinguish to the imported to Turkish as slave meant for the military service from to the lower slaves use a domestic labor or artisans, and the Mulk Sultan ruled from AD 1206 to the 1290. There is a most important time period here, and Qutbuddin Aibak is AD 1206 to 1210. Qutbuddin Aibak was the Turkish slave who had risen to high rank in the Muhammad Ghori's army. There is a most important. After the Muhammad Ghori's death in AD 1206, the control of his Indian possessions was passed out to Qutbuddin Aibak. The Qutbuddin Aibak for the army of Gauri. There is a most important here, Muhammad Gauri. Thereafter the Muhammad Gauri of death is 1206. The all control is a pass here of Qutbuddin Aibak. The Aibak was the first independent Muslim ruler of northern India, the founder of the Delhi Sultan. And there is a most important here. The Aibak had faced many a revolt from the Rajput. There is the most important. The Aibak the faced so many revolt from the Rajput and other Indian chiefs. And the Taudis Yadus was the ruler of Ghazni, is a claiming his rule over to Delhi. And Nasruddin's Kabucha as a governor of the Multans and the Uchu and the spur of the independence. Aibak was able to win over to the enemy by the consolatory measure as well as the display of power. He is defected to the Alauddins and occupied the Ghazni. This is a sensation of the Jay Chand and Harish Chandra has a drive out of the Turk and Vadyans and the Farrukhabad. Aibak reconquered the both is the Vadyan and the Farrukhabad. The Qutbuddin Aibak was is a grave faithfully and is a generous is due to the generosity he was known as the Luck Bugs. Luck Bugs is a most of the scholar considered of Aibak as the real founder of the Muslim rule in India. Luxembourg is the most important here, and the next year slave or ruler here Itumis. Itumis is the second of AD 1210 to the 1236. In the slave
ruler there in AD 1210 is a Aibak die of the injury received in a fall from the horse while playing to the Chongan and the Polo. After the death of few armies, arise of the sun is Aram Shah to throw into the Lahore. But Aram Shah was the incapable of ruler and the Turkish army is opposed him. The Turkish chief of Delhi invited the governor of Vadians is the son-in-law of the Kutuddin Aibak. The Kutuddin Aibak, the son, Itumis to come to Delhi and arm the Shah proceeded against him at the head of the army from Lahore to Delhi, but Itumis is defeated him and some of the Sultan with the name of the Sauddin. The creator of the considerations their Sultan, Delhi Sultan lies is largely with him. When the Itumis is ascended, the throne to the found himself surrounding with many problems is the other commander of the Muhammad Gauri like Alauddin Kuwachas and Ali Mardana rose in the defense is again. And the chief of Johor and the Ratan Mohor is joined to the Gwalior and Kanjor, declaring independent. Apart from this is the rising power of the Mongol under the Chengiz Khan and treating to the northern based frontier of the Sultana. Itumis took up to the task of the considering his opposition. He defected to the Yaodik in the AD 1215 in the Battle of the Tarai, and in AD 1270 is driven away the Kubacha from Punjab, and in AD 1220 when the Chengiz Khan destroyed the Khwarizms empire and the Itumis realized the political ancestry of the wardings a confirmation and with the Mongols, and thus the Jalaluddins is a Barani in their son of the Saun Khwarizm, while escaping from the Mongol. So is a settled to the Isumit is a court. Itumis is turn him away. Thus save the Sultanate. There is a destruction of the Mongol. From AD 1225 is onward, Itumis is engaged his armies in the surprising their disturbance in the east. In AD 1226 to 27, Itumis sent a large army under his son Nasruddin Muhammad, which is defected to Iwakas Khan and the both is a Bengals and the Bihar back in the Delhi Sultanate, and the similarly is a company was also launched against the Rajput chief. The latter war is captured in the AD 1226 and by AD 1231 the Itumis had established his authorities over the Mandor and Jor and the Banaya and the Gwalior. There is a most important. There is no doubt of that Itumis is a complete the unfinished work of the Aibak. The Delhi Sultan now cover a disabled territory. Besides there, he also organized to the trustees is a noble of officer into a group of 40, and the 40 they to Turkan in the Changazni, and he is forgotten as a ruler and the considered and organized by the newly is a former Turkish Sultan in Delhi. There is an important fact here that Itumis is established a group of 40. There is the most important group of 40. The group of 40 are Turkan-i Khalazini. He is where the Turkish army is a noble who is advised and help the Sultan in the administering their sultanas. After the death of Itumis, this group is assumed the great power in the hand. For a few years, they decided on the selection of Sultan on after the other. The group was finally eliminated by the Balban. There is a most important, or group 40 is the most important for the exam view. Itumis effectively is a process that defends his army of Delhi. He is separate the Delhi Sultana from the Ghazni is a Gohar and the Central Asian political. And Itumis also is obtained a letter of the investors in the AD 1229 from the Asid is a Khalifa or the Bhagavad to the gain of the Telmancy. Itumis made a significant contribution in a given shape of the administrative instructions, such as itax, army, currency, etc. And he gave to the Sultan two of its basis
coin is a silver, is a taka, and the copper is a jittal. And the two affect the greater control of their concreted where the Itumis is a granted it equatus. The Israeland is an assignment in the use of the cash salaries to his Turkish officer on a large scale. The recipient of the Itak is called to the Itadar. Is clocked the land is a review from to the territories under them. Out of this there is a maintained and the army contingent for the service of the state is enforced it is a law and order and the made there is urban expansion. Itumis realized that the economical potential of the dwarfs and italics where is distributed mainly in this region. And this acquired to the Itumis is a financially and administrative control over one of the most prediction is a region of North India. And the most important here, the next slab of empire, there is a Rajia Sultan. The Rajia Sultan is the first woman on this empire. AD 1236 for the 40, there is an important time period. The Rajia, their problem successor, traveled Itumish during his last day. Itumish did not be considered any of his son worthy of throne. His open choice was his daughter Rajia, hence nominated, and here he is the successor. But after the death of the son, is a Rukuddin, the forest ascended to the throne with the help of the army leader. However, with the support of the people of Delhi and some military leader, Rajya soon ascended in the throne. The bizarre head of state to the Qatar is a Razia did not fare to significant better is a primary because of her attempt to create a counter novel is a nobility of non-Turks and invite the forces of the Turkish armies. And there is a particularly is a incensed over to decision of the point the obscure Malik is a Jawuddin's Ukut and is Amir Akhur, the master of the horses, and the statement of the few other non-Turkey to important posts for the inflamed is matter. There is a most important for here. The nobility realized that is through the woman, Rajya was not willing to be peppered in their hand. Therefore, the noble started is revolting against her in the provinces. And there is a accused here of the volunteers of Fermines in is a modest and began to friendly to be of a science as a noble is a quack and she got a kill after he was the defeated by the noble. And thus there is a line was the very one come to the end in a AD 1240. There is a most important period time here. But next of here the Nasruddin Muhammad. There is a most important time period here 1246 to 66 AD. There is a very less time he is a kingdom and there is struggle for the power between the Sultan and Turkish chief. Chalengjani is which is the began during to the reign of the Rajia continue. After the Rajia death, the power of the Chahugani is increased and they become a largely responsible for making and is the unmakings of king is Ibrahim Shah. Is Ibrahim Shah is AD 1242-42 and the Masood Shah is AD 1242 to 46 where made a sultan and removed in the successions after them to the AD 1246. Ya Ulgu Khan later now as a Babban. The Babban is the next place the impression and young Nasruddin is a garrison son of their Itumis. And Throbanis himself is assumed their position of Nawab is Egyptis. The further strengthens a position of the married a daughter of the Salahuddin. The Sultan is Nasruddin is a Muhammad died in AD 1265. According to the Ivan is a Batun and Isami. The Balban is a poisoned. He is the master Nasruddin and acid their Thobian. There is a most important. The next year is a Balban. Balban had a 1266 to the 87. The time period is the most important. The struggle between to the Sultan and the Turkish noble continued till one of the Turkish chief. Ulugh Khan is the now as a history by the name of the Balban. There is a name of the year Balban and gradually
arrogated all our power himself and finally ascended their throne AD 1266. When the Balban became the Sultan, his position was not a succeed. The many Turkish chiefs were hostile to him. The Mongols were looking forward from the opportunity from the attacking the Sultan, as there is a governor of distance of provisional where also is trying to become independent rulers. The Indian ruler is also ready to revolt at the smallest opportunity. There is a most important here. And the law and the other situation in the area around Delhi and is the Dover regional health that is distracted in the Ganga, Yamuna, and the Dwab and Awadh. Their road were infested with their robbers and the dacoits, because of which the communication with the eastern area had become a defect. Some of Rajput Zamidar had set up to fort in the area and defect the government. The emirates has become a bodied as to the plunder people up to the outskirts of Delhi. To be deal with this element is a Balban adopted a step policy. In the event, many were killed. In the area of around is a Badyan, Rajput stronghold were destroyed. The Balban would in the autocratic manner and grow to the heart to the elevate position of the Sultan. He did not allow any noble to assume great power. He is even the frontier of theories of kingship. The historians is a Barony who is himself a great champion of the Turkish and noble said that is a Balban remarked. Whenever I see a base as a born is an ignoble man, my eyes is a born and the eye reach in the anger for my sport to the kill him. We do not know to the Balban actually a sad is bored, but his attitude toward to the no Turks was that a contempt. The Balban was not prepared to the share power with anyone, not even with his own family. The Balban is a was that determined to the break the power of the Chehanganis. Chehangani to here keep himself well informed. Balban appointment a spy in their every department. He also organized a strong centralized army, both to deal with the internal disturbance and repel to the Mongols who had achieved themselves in the Punjab and posed of serious threat to be a Delhi Sultan. The Balban reorganized to the military department is a Diwan-e-Arz and deployed to the army in the different part of the country to put down a rebelling their disturbance of the Mewat and Dwabs and Amba and the Katihar, were resulting to the surprised and has a Balban also is a secure a control over the Ajmer and the Nagur in the eastern Rajputana. But his attempt to the capture of the Ranthambore and the Gwaliors is a failed. In AD 1279, encouraged by the Mongol threat and the old age of Sultan, there is a governor of Bengal. Turikil's Beg is a revolted, he assumed their title of Sultan, and here there is a Kutaba is a read the name. Balban sent his force of Bengal and had the Turkils killed. Consequently, his appointment is Oben is a Bughura Khan as the governor of Bengal. By all this harsh method, Balban is control the situation in order to impress there is a people with the strength and the away of the government. The Balban maintenance is a magnificent court. He is refused to the love and the joke in the court and even give up to drinking wine so that no one may see him to the no serious moods. He also set on the ceremony is a sijada prostration of the boss, kissing of the monarch's feet in the court. And that is the most important. The Balban was undoubtedly there is only a main architect and the Sultan of Delhi, particularly of its former government and institution by asserting to the power of the Marquesas and Balban as strengthness of the Delhi Sultan, but even could not be fully defect of northern India against the attack of the Mongol. However, by the Skudings is a non-Turkish from a position of power and authorities and by a
thrusting only every narrow racial groups. He made many people justified, and this little phrase is a disturbances and the trouble after his death. Balban adopted to the policy of consolidations rather than to expansion. He introduced a new theory of kinship and defended of relation between the Sultan and nobility. Through this measuring of Balban's strength in the Delhi Sultan. The Balban died in AD 1287. After his death, the noble arise in the grandson is a Kaukuba to be a throne. His son soon replaced by his son Kamur, and who is remained one of the throne is from a little over 3 months. During to Balban resign, Firoz has been to the warden of the marches in the northern west and had fought many a successfully battle against the Mongol. He was called to the Delhi as a Malik, mean Minister of War. In AD is a 1290, Firoz took as a bold step of the moderns is a Kaimur and the desired their throne. A group of Khalji is a noble led to him to establish is a Khalji density, and some is a scholar call this event as the density of revolution of AD 1290 is both a end of the call slab density in the Firoz ascending the throne under the little of Jalauddin Khalji. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मामलुक सुल्तान। देखिए मामलुक सुल्तान का मतलब होता है गुलाम, यानी गुलाम सुल्तान या कह सकते हो गुलाम वंश। मामलुक सुल्तान जो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ और ये जो है बलबन तक जाते जाते जो है ये आखिरी चरण पे आ गया। तो कहते हैं इसके विषय में जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मलुक सुल्तान में कौन कौन जो थे काफ़ी पावरफुल हुए और उनका क्या विशेष महत्व रहा। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन के साथ भारत में मलुक सुल्तान यानी गुलाम वंश के युग का आरंभ हो गया था। मालुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। यह सैन्य अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले तुर्की गुलामों को निम्न गुलामों से जो घरेलू कार्य अथवा कारीगरों से अंतर व्यक्त करने के लिए सदैव प्रयोग किया जाता था। मालुक सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा, यानी ये समय काल अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी थी। यानी यहाँ पर 84 साल की जो लंबी अवधि थी गुलाम शासकों का दबदबा था, लेकिन बाद में चल के जो ये दबदबा जो थी ख़त्म हुई। तो इसी के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन जो हुए इसमें इम्पोर्टेंट शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर अपना जो है परचम स्थापित करने में सक्षम हुए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे समक्ष आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के सेना में उच्च पद तक पहुँचा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कहानी भी है कि वो जो था अपने भाइयों से जो है भाइयों ने उसको जो है बेच दिया था, और बेचने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बाज़ार में बिक रहा था, तो वहाँ पर जो है इसको जो है गौरी ने देख लिया और गौरी ने जो है इसको खरीद के अपने साथ रखा और फिर उसको जो है एक सैनिक के रूप में उसको भर्ती करके उसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गरीब परिवार का बच्चा था, उसके भाइयों ने ही उसको बेच दिया था, और फिर जो है ये जब गुलाम के लाइन में बिक रहा था, जहाँ से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद के जो है अपने साथ रख के उसको उच्च सेना पद तक वो पहुँचने में सक्षम हुआ। कहते हैं सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी जब भी यहाँ से भारत से जीत के जाता कोई ना कोई राज्य को जीतता और वहाँ पर कोई ना कोई अपने गुलाम शासक को जो है बैठा देता। तो ऐसा ही हुआ, जब मोहम्मद गौरी भारत पर जीत हासिल करके जा रहा था तो यहाँ पर जो है दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया और वो यहाँ पर राज्य करने लगा। गुलाम वंश का स्थापक ऐबक उत्तर भारत में प्रथम प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के रूप में यहाँ पर जाना जा सकता है। ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय सरदारों की ओर से विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। गजनी के शासक जो है ततुद्दीन जरदोश दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। सुल्तान सिंध का शासक नसरुद्दीन कवाचा स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल हो चुका था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक
समझौता और शक्ति प्रदर्शन द्वारा इस शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहा। उसने जो है यशोदोल के पराजित कर गजनी को जीत लिया और जयचंद और उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदाऊं तथा कनौज से जो है तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया था। ऐबक ने ये दोनों क्षेत्र पुण्य जीत लिया और कुछ दिन ऐबक वीर, वफादार तथा नम्र था। उसकी विनम्रता के चलते ही उसे लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। कई विद्वान ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक स्थापक भी मानता है। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था तो अचानक घोड़े पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी का जो है दामाद जो है इल्तुतमिश वहाँ का शासक बन गया और उसके बाद भाग दौड़ जो था इल्तुतमिश के हाथों में चला गया। तो कहते हैं इस तरह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक की अंत के साथ जो है उसका दामाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बना। अब चलिए देखते हैं इल्तुतमिश की जो है किस प्रकार की जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इल्तुतमिश जिनका सन जो था 1210 से लेकर 1236 तक है, यानी देखा जाए तो इन्होंने 26 साल की काफ़ी समय अवधि में जो है अपना शासन को चलाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसकी जो है किस प्रकार जो है नियुक्ति हुई, कैसे इस सुल्तान बना, ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं सन 1210 में जब चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने उसके पुत्र अरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, किंतु अरम शाह अयोग्य व्यक्ति था तथा तुर्की जो है अमीरों से उसके खिलाफ विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बंदालुक के शासक ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। अरम शाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली लाकर उसका सामना भी किया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित भी कर दिया। सलाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के संगठित करने का श्रेय उसी को जाता है, यानी इल्तुतमिश काफ़ी पावरफुल था और इसी ने ही जो था इसको जीता। कहते हैं इल्तुतमिश भी अपने ससुर के जैसा ही था, उसको भी जो है गुलाम वंश का शासक माना जाता है क्योंकि ये भी एक गुलाम था। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही इल्तुतमिश भी जो है गुलाम शासकों में से ही माना जाता है, क्योंकि ये भी जब शासन बैठा उससे पहले इसको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और अपनी बेटी से जो है इसकी मैरिज करा दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब इल्तुतमिश गद्दी में बैठा तो वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ था। जलदेश और ख्वाजा अली मर्दाना जैसे अन्य तुर्की सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जलार में जो है रणभोर के शासक ग्वालियर और कंजूजर शासकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा भी कर चुके थे। इसके अतिरिक्त जो है सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान की बढ़ती शक्ति का भी काफ़ी भय सता रहा था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम स्वयं को संगठन करना आरंभ कर दिया और उसने तराई के मैदान में जलालुद्दीन से 1215 में पराजित भी किया। सन 1217 में उसने ख्वाजा के पांव पंजाब से उखाड़े और सन 1220 में जब चंगेज खान ने ख्वारिज साम्राज्य का विनाश किया तो इल्तुतमिश के मंगोलों ने प्रत्येक संघर्ष को टालने की आवश्यकता महसूस हुई। अंत जब ख्वारिज के शाह का पुत्र जलालुद्दीन जमगवारानी मंगोल से बचता हुआ शरण पाने इल्तुतमिश के दरबार में आया तो इल्तुतमिश ने उसे इनकार कर दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के मंगोल द्वारा होते विनाश से बचा भी लिया। कहते हैं सन 1225 के उपरांत इल्तुतमिश ने अपनी सेना को पूर्व प्रदेश के विरोध को दबाने के लिए प्रयोग किया और सन 1226 से लेकर 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजा, जिसे इवाज़ा खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। राजपूत शासकों के विरोध भी सम्मान अभियान चलता ही रहा, यानी सन 1226 में रणभोर के जीता तथा सन 1231 में इल्तुतमिश ने अपना अधिकार जो मंदोर, अजलोर, बयान और ग्वालियर पर कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्यों को जो है पूरा किया। दिल्ली सल्तनत अब एक विस्तृत भूभाग तक फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने विश्वास पात्र अधिकारियों का एक समूह तुर्क जलहागानी यानी 40 बनाया था, यानी 40 सैनिक के एक संगठन बनाया था और वो एक दूरदर्शी शासक था और उसने जो है बन-स्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित भी किया। बात यहाँ पर एक फैक्ट आती है कि इल्तुतमिश ने तुर्की जलहागानी यानी 40 का समूह की स्थापना भी किया
और इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसके हाथों में काफ़ी शक्ति आ गई थी। कई वर्षों तक वे एक के बाद एक दूसरे सुल्तान का चयन करते रहे। अंततः बलबन ने इस समूह को नष्ट करके रख दिया। इल्तुतमिश की सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीर का सफाया किया गया। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी गौर मध्य एशिया के अलग किया। इल्तुतमिश के बगदाद के अब्बासी खलीफा को वैधता पाने के लिए पत्र भी सन 1229 में हासिल किया था। इल्तुतमिश के प्रशासित स्थान जैसे इख्त, सेना और सिक्का व्यवस्था के रूप में देने के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया और उसने सल्तनत को 2 मुख्य सिक्के दिए, एक चांदी और एक टाका और तांबा का जीतल। अपने अधीनस्थ क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण पाने स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने व्यापक स्तर पर अपने तुर्क अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि समझौता एकता का दान दिया करता था। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इल्तुतमिश ने किया था। ऐसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एकता को पाने वाले एक दातार कहा जाता था, वो अपने अधीन क्षेत्रों को राजस्व वसूला किया करते थे। इसके द्वारा वह सस्ता सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रख रखाव भी किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कानून तथा व्यवस्था का पालन किया करते थे। अपने खर्चे की भरपाई किया करते थे और इल्तुतमिश ने द्वीप के आर्थिक संभावनाओं को पहचाना और मुख्य उसी क्षेत्र में इकट्ठा बांटे गए। इसने इल्तुतमिश को उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र में से एक पर वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण के प्रति आश्वस्त किया। तो ये काफ़ी है, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम 12 चैप्टर करेंगे। तो उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इल्तुतमिश के अंत हो जाने के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, यानी पहली भारत की सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया के अगर देखा जाए तो समय काल बहुत ही कम था, 4 साल के अंतराली था, यानी 1236 से लेकर 400 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो रजिया सुल्तान का 4 साल के संघर्षों से भरा हुआ था। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश के मुख्य उत्तराधिकारी की मुख्य समस्या थी। तो इल्तुतमिश ने अपने किसी भी पुत्र को सुल्तान बनाने के काबिल नहीं समझा। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज सेना के कुछ अधिकारियों की सहायता से गद्दी पर बैठ गया और दिल्ली की जनता को समर्थन से तथा कुछ अन्य अधिकारियों के सहयोग से रजिया गद्दी पर बैठ गई। कहते हैं अपनी खूबियों के बावजूद रजिया बेहतर शासन नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यतः उसने गौर तुर्की और कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया था। इसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाला बात सिबोसिया मालिक जमाउद्दीन याकुत को अमीर अखरून यानी घोड़े का मालिक नियुक्त करना रहा। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अन्य गौर तुर्की की नियुक्ति से भी आग में घी डालने का काम किया गया। यानी यही कदम था जहां पर रजिया का पूरा संघर्ष अधूरा सा रह गया। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद भी वह दूसरे के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। अंततः सरदारों ने उसके क्षेत्र में विद्रोह करना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसे महिला की मर्यादा भंग करने और अविश्वास सरदार याकूब के साथ अति करीबी होने के आरोप भी लगाया गया। वह सरदार द्वारा पराजित हुई और मारी गई। इस प्रकार उसका शासनकाल छोटा रहा तथा 1240 में समाप्त हो गया। कहते रजिया सुल्तान के विरोध हुआ तो वो जंगलों में चली गई और जंगलों में कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और वहाँ पर ही उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके पश्चात इसकी शासन का सदैव के लिए अंत हो गया। कहते हैं उसके पश्चात नसरुद्दीन मोहम्मद का समय काल आया और ये बहुत समय काल छोटी थी, यानी 1240 से 46 ईस्वी तक ही रही। सुल्तान व तुर्की सरदार चलनगानी के बीच सत्ता का संघर्ष जो रजिया के समय से आरंभ हुआ था वो चलता ही रहा और रजिया की मृत्यु के बाद इन चलनगिनियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह राजा के गद्दी पर बैठने और उतरने के लिए बहुत हद तक काबिल हो गए थे। बेराम शाह 1240 से 42 तथा मसूद शाह 1242 से 44 क्रमश सुल्तान बनाए गए तथा हटाए भी गए। इसके पश्चात सन 1246 में उलीन खान यानी कलंतार में जिले बलबन के नाम से जाना गया वो एक प्रयोग किया गया। युवा नसरुद्दीन
इल्तुतमिश का पोता को सुल्तान बनाकर खुद उसका नायब बना और अपनी स्थिति को और दृढ़ बनाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया। नसरुद्दीन से विवाह करने से नसरुद्दीन जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1245 में मारा गया। इबूतु तथा इस्लामी के अनुसार बलबन ने अपने शासक को जहर देके मारा था और अब उस गद्दी पे उसने अधिकार भी कर लिया था। कहते हैं उसके पश्चात आता है बलबन। कहते हैं बलबन का भी समय काल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और कहा जाता है, इसकी में एक कहानी भी है कि बलबन जो है काफ़ी कुरूप था और इसको कोई खरीदना नहीं चाहता था। तब जाके इसको जो है खरीदा गया और तब से वो सेना में भर्ती हुआ और उसके बाद अपना जो जौहर दिखाया। उसने रजिया के समय में भी पूरा भागदौड़ अपने हाथों में रखा हुआ था। कहते हैं बलबन की जो समय काल थी 1266 से 87 ईस्वी के मध्य माने गई, यानी 1266 से 87 ईस्वी तक माना गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट समय काल था। सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच सत्ता का संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध अलगू खान ने सत्ता का केंद्रीकरण करके सन 1266 में सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे और सुदूर प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय शासक भी विद्रोह करने के लिए छोटे से मौके का तलाश में भटक रहे थे। दिल्ली तथा द्वाब क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है शोचनीय थी। गंगा यमुना द्वाब अवध के मध्य सड़कों पर डकैती और लुटेरे का जो वर्चस्व था, जिस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में यातायात असंभव हो चला था। कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्रों में अपने किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दर्शाया था। कहते हैं मेवाती जो है इतनी भयभीत हो चले थे कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में भी लोग के लूट लिया करते थे। इस तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई, यानी इसको हम लोड नीति के नाम से भी जानते हैं। मेवात में कई मारे गए और राजपूतों के मजबूत जो है गढ़ वधूक के आसपास का क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। बलबन के निरंकुश तरीके के शासन किया तथा सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति खुद जो है दृढ़ करने के लिए बहुत ही मेहनत की। उसने किसी भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति अर्जित नहीं होने दी। उसने राष्ट्र की सिद्धांत को भी स्थापना किया और इतिहासकार वर्ण जो स्वयं भी तुर्की विद्वानों में श्रेष्ठ था के अनुसार बलबन कहता था कि जब भी मैं नीच कुल में जन्मे नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें सुलग उठती है तथा गुस्से में मैं तलवार उठा लेता हूँ मारने के लिए। हमें नहीं पता कि बलबन के वास्तव में ऐसा क्यों कहा था, किंतु गैर तुर्कों के प्रति उसके विचार इसी प्रकार के थे। बलबन अपनी सत्ता किसी को नहीं बांट सकता था और यहाँ तक कि परिवार वाले से भी नहीं। बलबन चलायनी की शक्तियाँ नष्ट करने के लिए जो है कटिबद्ध था और स्वयं को सजग रखने के लिए बलबन ने हर विभाग में जो है गुप्तचर नियुक्त कर दिया था, यानी उसने हर क्षेत्र में अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा दी थी। उसने एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन भी किया जो आंतरिक विद्रोह से भी लड़ सके तथा पंजाब की और रुख भी कर रहे तथा दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन रहे मंगोल को भी माकूल जवाब दे सके। अपने सैन्य विभाग का दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया गया तथा विद्रोह का दमन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सेना की नियुक्ति भी की गई। मेवात, द्वाब, अवध और कौशल के विद्रोह जो विमलतापूर्वक कुचल दिए गए और बलबन ने पूर्वी राजपूताना क्षेत्र जो अजमेर और नागौर पर विजय पाई, किंतु ग्वालियर और रणभोर पर विजय हासिल करने में वो नाकामयाब रहा। सन जो है 1269 में जो है मंगोल के खतरों में उत्साहित होकर और सुल्तान की बढ़ती आयु देखकर बंगाल के शासक जो कहते तुगरील बेग ने विद्रोह कर सुल्तान की उपाधि धारण की और तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यहाँ पर अपने नाम का खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है कि वह गुलाम शासकों से मुक्त हो जाता है और एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। बलबन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरील को मारा गया। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्र जो है बुगारा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। इन सब कठोर जो है निर्णय द्वारा बलबन ने जो स्थिति को नियंत्रण किया। लोगों को अपनी सत्ता की शक्ति तथा प्रभुता को प्रभावित करने के लिए बलबन ने एक वैभवशाली दरबार भी बनाया। उसने दरबार में हंसना तथा चुटकुले सुनना बंद कर दिया तथा शराब का सेवन भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी उसे आराम वाली अवस्था में न देख ले। उसने दरबार में जो है ज़्यादा यानी सलाम तथा पैबोस
राजा के कदम चूमने जैसी प्रथाओं पर भी बल दिया। एक फैक्ट के हिसाब से देखा तो बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई। उसने राजपद को नए सिद्धांत को प्रतिपादन किया और कुलीनों और सुल्तानों के मध्य रिश्ते का पुण्य प्रभाषित भी किया। इस तरीके द्वारा बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान भी किया। बलबन निस्संदेह दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माताओं में से एक था। विशेषकर सरकार और उसके संस्थाएं राजा की शक्तियों को दृढ़ कर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान किया और किंतु फिर भी वह मंगोल के आक्रमणों से उत्तर भारत को बचा नहीं पाया और तो और गैर तुर्कों के महत्वपूर्ण पदों और अधिकारियों से विमुक्त भी मात्र कुछ ही समूहों के बीच अधिकार शक्तियों की वितरण से अन्य लोगों में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न किया। इससे उसकी मृत्यु के पश्चात नए संघर्ष को ही जन्म दिया। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत कुलीनों ने उसके पोते कोकवाद को गद्दी पर बैठाया, किंतु जल्द ही उसको पुत्र कैमूर ने उसे सत्ता से अलग कर दिया, जो स्वयं मात्र 3 माह तक ही शासन कर सका। बलबन के शासन के दौरान फिरोज उत्तर पश्चिमी सैन्य अभियान को संचालक था और उसने मंगोल के खिलाफ कई सफल अभियान भी लड़े। उसे दिल्ली में बुलाया गया तथा अर्ज-ए-मुआलिक युद्ध यानी मंत्री बनाया गया। उसने 1290 में एक कड़ा कदम उठाकर कैमूर की हत्या भी कर दी तथा खुद गद्दी पर बैठ गया। खिलजी कुलीन का एक वर्ग में खिलजी वंश की नींव डाल दी गई और कुछ विद्वान इसे वांशिक क्रांति के रूप में परिभाषित भी करते हैं। इससे तक कथित गुलाम वंश का अंत किया तथा फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के रूप में सिंहासन में बैठा। यानी इसी के साथ बलबन के साथ देखा जाए तो गुलाम वंश का सदैव के लिए अंत हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हो गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस ये NIC बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।